So this is a remote car. So a car is used for transportation. So this car, suppose all the tires move clockwise, then the car moves forward, and then when all the tires rotate backwards, the car uh, the car moves backwards. So like this. Suppose these two tires are rotating forwards. So suppose all the four tires are rotating clockwise like this. So the car moves forward. And if all the tires rotate anti-clockwise, the car moves backwards. So for rotating the car, we have to rotate this tire clockwise and this tire anti-clockwise to rotate the car. So if Previously also asked you, every one of you to not to use words like this tire, that tire. I've always asked you to draw the diagram, label it, and use the name that you have labeled. People cannot listen to you and look at your hand movements at the same time. People cannot do that. इवन आई कैन नॉट डू दैट. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय दिस टायर, ये टायर, वो टायर, इसका क्या मतलब होता है. आई कैन सी फोर टायर्स. आई डू नॉट नो व्हाट इज दिस टायर, ये टायर, वो टायर. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट, हाउ ऑडियंस विल अंडरस्टैंड योर वर्ड्स. मैं हर प्रेजेंटेशन में बात बोलता हूँ ये वाले. यू गाइस डू नॉट इवन ट्राई टू गो बाय इट. so suppose this is the base of the car and this is tire 1, this is tire 2 and this is tire 3 and this is tire 4. So when all the four tires rotate clockwise, then the car moves forward. And if all the tires rotate backwards, then the car moves backwards. So when tire 1 rotates clockwise and tire 3 rotates anti-clockwise, the car rotates. So it's like we are applying force right over here and then like this. Again, you are showing it without drawing. Again, like this, like that. Why not draw? You have sketch pens, you have the board. Why not draw everything while speaking? Lahiri, please understand this. Now, why are you pointing fingers? Which is also fine, but why not drawing at the same time, showing it? What is the reason कि आप नहीं draw करते हो but you feel comfortable ऐसा उंगली हिला के और हाथ हिला के दिखाना? ये ज़्यादा comfortable क्यों है? ऑडियंसेस के लिए नहीं है ये कंफर्टेबल. मैं लहरी फिर से कह रहा हूँ, प्लीज इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये जब सुन रहे हैं तुम्हारी बात तो इनको क्या समझ में आ रहा हो. अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बंद करो. तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ऑब्वियसली क्लियर है, तुमने डेवलप किया है पूरा. लेकिन ये रेडियो स्टेशन थोड़ी ना है, सामने वाला इंटरैक्ट कर रहा है तुमसे. इट्स नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन ना. आप रेडियो पे होते हो तो आप बोलते रहते हो, आपको नहीं फर्क पड़ता सामने वाला क्या समझ रहा है, कितना समझ रहा है, आप बस बात कर रहे हो. यहाँ तो फर्क पड़ रहा है. व्हाट अबाउट दैट गाय? हाउ विल यू अंडरस्टैंड? अपने माइंड के जोन से बाहर आओ और इनकी नजरों से देखने की कोशिश करो कि ये जो सुन रहे हैं वो इनके लिए सही है, समझ में आ रहा होगा क्या. सोचो एक बार प्लीज, एंड ड्रॉ एवरीथिंग. जो बोल रहे हो सब ड्रॉ में दिखना चाहिए. अलग अलग कलर के पेन्स भी हैं, यू कैन यूज दोस. तुमने ये दोनों एरोज बनाए. अगर तुम कह रही हो कि वो एरो फॉरवर्ड है तो ऊपर लिखो ना FORW, नीचे लिखो BACK. विजुअल क्यूज देना जरूरी है. Suppose tire 1 rotates clockwise and tire 3 rotates anti-clockwise, then the car rotates.
So it's like we are applying a force like this and then like this, so the car is rotating. So tire 3 rotates clockwise and tire no, tire 1 rotates clockwise and tire 3 rotates anti-clockwise. Then the car will rotate. Why so? Why is it that when these two tires are rotating in opposite directions, the car rotates? Why is it so? क्यों हो रहा है ऐसा? Uh, so Has to be a reason somewhere, right? So if tire 1 rotates like this, so as I said before that if all the 4 tires rotate forward, rotate clockwise, then the car will move forward. So like that, if this tire 1 rotates clockwise and tire 3 rotates anti-clockwise, they're applying a force like this and then like this, so it rotates. Is it okay? Any questions? आपने बोर्ड पे समझाया कि टायर 1 जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और टायर 3 जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. सो दिस शोज दैट अलग अलग टायर के अलग अलग डीपीडीटी स्विचेस होते हैं, लेकिन आपने तो 2 डीपीडीटी स्विचेस यूज किए हैं. हाँ, तो ये 2 टायर्स के लिए एक ही डीपीटीटी स्विच है और ये 2 टायर्स के लिए एक ही डीपीटीटी है. तो जब ये दोनों टायर्स हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो फिर ये भी टायर घूमेगा ना. और अगर सपोज इसका मैंने सेपरेट स्विच ले लिया, डीवीडी स्विच, तब फिर ये ये एक ही आगे मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है ना, लेकिन हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं है अभी. मतलब तो अगर चारों के लिए सेपरेट स्विचेस यूज किए तो इश्यू है क्या कोई? इश्यू नहीं है, कर सकते हैं. मटेरियल ज़्यादा लग रहा है. हाँ, सारे पीरियड यूज फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू है क्या? मटेरियल रिलेटेड ठीक है, फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत है उससे? बेसिकली दो मोटर्स को एक साथ पावर दे रही है. वो दो मोटर्स को एक ही स्विच से पावर दे रही है, तो उसके लिए एक स्विच सफिशिएंट आई थिंक है ना. या ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? The question is it important that when tire 1 is rotating clockwise and tire 3 is rotating anti-clockwise, only then the car will move towards right or left, or we can do something else for it? we can just rotate this. We can only rotate tire but it will rotate slowly. But if we rotate tire 3 also anti-clockwise, then it will rotate much faster. This is not an actual rotation. I mean ठीक है, ये पूरा प्लेटफॉर्म जो कार का चेसिस है वो पूरा रोटेट हो जाता है, बट इन अ यूजुअल रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है. वो जो टायर है वो टायर्स घूमते हैं. बाहर घूम जाते हैं टायर्स. टायर्स का जो फेस है इट टर्न्स So रियल. यहाँ पे तो टायर्स हमेशा पैरेलल रह रहे हैं. टायर 3 एंड टायर 4 आर ऑलवेज पैरेलल एंड टायर 2 एंड टायर 1 एक ही लाइन में है, बेसिकली पैरेलल में. बट सारी टायर्स पैरेलल है एक दूसरे के एक्चुअली में, ऐसी है ना. बट उस केस में क्या होगा, ये टायर ये ऐसे एक तरफ बेंड हो जाता है, ऊपर का टायर ऐसे ही, और ये बाहर ऐसे 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 निकलता है. तो इफ हाउ डू यू थिंक वी कैन डू दैट? कुछ कर सकते हैं वैसा? हाँ, अभी मैं बस वही हम लोग एक कर सकते हैं कि सपोज ये मोटर्स नहीं है, ये दोनों मोटर्स नहीं है,
और मैंने इनके बीच में एक स्टिक लगा दी और वो स्टिक के सपोज ये टायर्स हैं, हाँ, तो मैंने इधर पे ऐसे स्टिक लगा दिया नीचे और फिर ऐसे कॉल से स्टिक अटैच कर दी जो कार्डबोर्ड से ऐसे निकल रहा है बाहर ऊपर की तरफ। तो जब हम लोग वो स्टिक को ऐसे रोटेट करेंगे तब वो बस आगे के टायर जैसे मतलब घूम सकता है। ओके, तो उस केस में कार को आगे कैसे ले जाओगे, फॉरवर्ड कैसे जाएगा, क्योंकि दो टायर्स तो तुम्हारे ऑक्यूपाई हो गए हाँ, टर्निंग के लिए। तो बाकी के दो पीछे के टायर्स हैं वो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब वो आगे और पीछे जाएगा। आगे और पीछे जा सकता है। ओके, ग्रेट ग्रेट, नाइस। हाँ, मैं तो बस एक आइडिया दे रहा था, जैसे कि मैंने मतलब एक बार मैंने मतलब एक हमारी कार सर्विस पे गई थी, तो मैंने नीचे से एक बार देख लिया था कि उसका इंजन कैसा होता है। तो जो जो पीछे के टायर्स होते हैं वो रोटेशन के लिए यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड के लिए होते हैं एज आई हैव सीन, और जो आगे के जो टायर्स होते हैं दैट इज जस्ट फॉर टर्निंग बेसिकली। सो इसमें आपने एक चीज मिस कर दी कि जो स्टिक्स होगी जो हमने टायर 2 और 3 का लगाई है उसमें आपको मोटर को ये स्टिक्स लगानी पड़ेगी एंड यू हैव टू कीप दैट फ्री। मतलब मोटर पे क्या करना समझ में नहीं आता। व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? मोटर पे स्टिक लगेगी क्योंकि मोटर घूमेगा, मोटर घूमेगी तभी टायर्स घूमेंगे। मोटर टायर को अटैच है। मतलब तुम टायर्स बोल रहे हो कि मोटर ऐसे अटैच होगा स्टिक? हाँ, not to the tires but to the motors अच्छा, and ऐसे। keep the free and keep the motor free. तुम टायर्स के बीच में स्टिक अटैच कर रहे हो कि मोटर्स के बीच में स्टिक अटैच? टायर्स के बीच वो टायर्स के बीच में कर रही है तो मोटर्स का तो पॉइंट ही नहीं रहा ना फिर वहाँ पे। So but वो भी हो सकता है because अब अगर हम नहीं, मोटर correct। से रोटेट कर देंगे जैसे थोड़ा सा जैसे ऐसे rotate तुम कर कह रहे हो कि मोटर और टायर का असेंबली ही टर्न हो पूरा का पूरा साथ में। हम्म ये बोल रहे हैं कि अगर आगे वाले टायर्स को भी पावर दे दें हम मोटर लगा के, तो उस केस में मोटर और टायर साथ में टर्न हो सकते हैं, तो उसको पावर भी मिलती रहेगी और वो टर्न भी हो जाएगा। that's अदरवाइज अगर स्टिक लगाओगे बिना मोटर के तो फ्री छोड़ना पड़ेगा। कि बेसिकली आप गाड़ी को और पास कर रहे हो सामने वाले को भी पावर देकर। जो रियल कार्स होती हैं उसमें कौन से टायर्स घूमते हैं एक्चुअली में? पावर किन टायर्स पे जाती है, दो पीछे वालों को या आगे वालों को? पीछे वाले रोटेट करते हैं, पीछे वाले मैंने भी नोटिस किया, आगे के बस टर्न होते हैं और पीछे के वो रोटेट करते हैं। कैसे देखा तुमने ये? मतलब जब पापा जब कार को पार्क करते हैं अपने पार्किंग से निकालते हैं तब मैं देखती हूँ तो वो टायर से टर्न करते हैं। हाँ, लेकिन ये कैसे पता कि आगे वाले टायर्स को पावर नहीं मिल रही है, कि आगे वाले टायर तो फ्री हैं? मैं बता सकता हूँ ये हाँ। बात उसमें शायद मतलब मैंने मेरा सिर्फ जनरल नोटिस है कि उसमें जो स्टीयरिंग व्हील होता है दैट्स करेक्ट, मतलब उसमें होती है पावर बट इट्स वेरी लो। मैं टर्निंग पावर की बात कर रहा हूँ, जो हम टायर्स को टर्न की जो बात हो रही है, वेदर इट इंजन से वो पावर, इंजन में जब कंबशन होता है उसकी वजह से जो टर्निंग हो रही है व्हील की, वो टर्निंग व्हील की पीछे वाले टायर्स के लिए हो रही है सिर्फ, कि आगे वाले टायर्स के लिए भी होती है, या सिर्फ पीछे वाले टायर्स के लिए हो रही है और उसके पुश से फिर आगे वाले टायर भी घूमते हैं अपने आप? मेरे हिसाब से नहीं पता होगा ना, क्योंकि नीचे से कैसा है तुमको नहीं मालूम होगा। नहीं इतना नहीं, लेकिन मैंने इंजन देखा है नीचे से। इंजन से नहीं फर्क पड़ेगा, इंजन तो कहीं पे भी लोकेटेड हो सकता है, इंजन तो आगे लोकेटेड। नो बट द व्हील्स तो नीचे ही होते हैं कार के। तो दैट्स व्हाट, इंजन आगे लोकेटेड है फिर भी पीछे वाले टायर घूम रहे हो सकते हैं, पावर ट्रांसमिट हम कर सकते हैं। यस तो इंजन की पोजीशन पे मत डिसाइड करो। हाँ तुझे क्या लगता है क्या होता होगा, पीछे वाले घूमते हैं कि आगे वाले भी घूमते हैं इंजन से? मेरे को लगता है कि आगे वाले भी घूमते ही होगा। पीछे वाले ही घूमते नहीं, हैं। मैंने ना यहाँ जिम कॉर्बेट किया था, मैंने सफारी में मोस्टली कार में देखा है। सारे व्हील्स सही बोल रहे हो। हाँ, सफारी में सारे घूमते हैं। और टू व्हील्स है। एग्जैक्टली, दो तरह की ड्राइव्स होती हैं, 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव्स। मैंने ऐसा कुछ देखा है जो पीछे वाले टायर में कुछ ऐसा होता है और वो रोटेट करता है। यस, इसलिए मुझे पता ठीक है, कोई बात नहीं। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? या What are the parts inside a car? Can you name them?
Have you any questions related to this? How is she doing this? About its working or anything? No, what the question I asked is related to the car. Related to the cars, but still we cannot ask her the name of the models of the cars, not like that. Not models. Do you have anything related to the movement or working of this? What she has done? She has prepared something which can move things around, which can transport things. So, anything related to this particularly about how she has connected the tires or motors, how could she can do this in a better way? If you have any idea if this could be improved, like that. Can you keep like heavy object on the car, like this thing? I have not tried, but I think it is. बैटरी रख के देखो. बैटरी में नहीं हो पाएगा। तो see- लेकिन वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। हाउ डू यू थिंक क्या तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा अगर सपोज इस पे तुम ज़्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अभी 10 kg की ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बट यू वांट टू बम्प इट अप टू 50 kg कि 50 kg और ट्रांसपोर्ट हो सके, तो क्या क्या फैक्टर्स तुमको कंसिडर करने पड़ेंगे? बेस स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर, ब्रेक नहीं हो, ब्रेक नहीं हो, और जो मैंने ये नीचे मोटर चलाई ना वो मतलब अच्छे से फिक्स कर लें ताकि वो फिर मतलब टायर शुड बी मोर पावरफुल। हाँ मतलब अगर प्लेटफॉर्म ब्रेक नहीं हो तो टायर्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। व्हाट एल्स? So can you make it like the hand which can lift objects? दैट्स फाइन, शी कैन। सो और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर और वजन रखना हो? बोल रहा हूँ। और क्या कर सकते हैं? एनीथिंग एल्स, एनी अदर इम्प्रूवमेंट? अगर ज़्यादा वजन मुझे चढ़ना है तो क्या पैरामीटर्स पे और ध्यान दे सकता हूँ? विल इट रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर पावर, इफ इट नीड्स टू कैरी मोर वेट? स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ कार की? स्पीड तो हमको टायर्स बड़े लेने पड़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा हमको। छोटे टायर से स्पीड नहीं आ सकती? नहीं, छोटे टायर से मतलब अगर एक टायर लिया तो एक टायर सपोज ऐसे घूम रहा है तो बस वो अगर एक राउंड काट रहा है तो फिर बस इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। छोटे अगर बड़ा टायर होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एक ही बार में, एक राउंड में एक ही राउंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, बट वो डिस्टेंस कवर करने के लिए जब वो राउंड ले रहा है, एक रोटेशन ले रहा है, तो वो एक रोटेशन भी कितनी देर में हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। बड़े टायर का भी रोटेशन धीरे हो रहा हो सकता है और छोटे टायर का रोटेशन भी क्विकर हो रहा हो सकता है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। तब फिर डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अगर बड़ा टायर धीरे से घूम रहा है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है तो हो सकता है मतलब कि ये जो टायर है वो जब तुम धीरे और तेज बोलते हो तो इस तरह से बोलो, सपोज छोटा टायर है, इट इज टेकिंग 10 रोटेशंस पर सेकंड, 10 रोटेशंस पर सेकंड, और बड़ा टायर है वो ले रहा है 2 रोटेशंस पर सेकंड। दिस इज व्हाट धीरे एंड तेज ऑफ द रोटेशन ऑफ द टायर, राइट? हाउ मेनी रोटेशंस पर सेकंड या पर मिनट, जैसा भी तुम चाहो। तो माय क्वेश्चन इज, अगर छोटे टायर और बड़े टायर का रोटेशन पर सेकंड सेम है, देयर इज अ बिगर टायर दिस मच एंड देयर इज अ स्मॉलर टायर, डायमीटर बेसिकली, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, एंड बोथ आर रोटेटिंग 10 रोटेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में दोनों 10 रोटेशंस ले रहे हैं, पावर किस में ज्यादा चाहिए होगी? पावर छोटे वाले में ज़्यादा चाहिए होगी। Your research work contained a word, if you remember, torque. Research work में word था torque. Did you research upon it? करना चाहिए था तो तुम्हें समझता। एक बार कॉमन सेंस भी लगाओ यार, बड़े टायर को 10 रोटेशंस पर सेकंड और एक छोटे टायर को 10 रोटेशंस पर सेकंड, छोटे टायर को क्यों पावर ज्यादा चाहिए होगी? बड़ा टायर still has more mass because it has a bigger diameter and the same number of rotations, इसमें भी 10 रोटेशन कर रहे हो एक सेकंड में, बड़े में भी 10 रोटेशंस कर रहे हो एक सेकंड में, इसको छोटे वाले को कम पावर क्यों चाहिए होगी? सोचो तो सही एक बार। वो जो टेंसर को 50 kg होगा उनको बम्प करना, वो वेट कैपेसिटी, ये मेरे हिसाब से उससे सबसे मेन चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट, जो कि मैं ज़्यादा टायर लगाने से कर सकता हूँ। जैसे कि जब बड़े बड़े ट्रक्स अगर देखे होंगे तो उसमें अगर एक चीज़ नोटिस की होगी, तब जैसे यहाँ पे हर एक जगह पे एक एक टायर लगे हुए ना,
तो वहां पे से एक एक टायर की जगह दो दो टायर लगे हुए होते हैं, और उसमें भी ऐसे बस ऐसे चार मतलब 8 टायर नहीं लगे होते। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ज्यादा टायर्स लगा देते हो, सब उसमें बीच में 2 3 4 और टायर्स लगा देते हो तुम, तो उससे क्या सेम प्लेटफॉर्म 50 kg उठा पाएगा? 50 kg, सपोज और टायर्स लगा दिए, जैसे कि उत्सव कह रहे हैं, 2 2 टायर्स जो लगे उनके बीच में एक एक 2 2 टायर्स और लगा दिए, तो will it help in carrying more weight? There is a reason why tractor has such huge tires at the back. There is a reason why truck has more than 2 tires, many tires attached together. Trucks में देखा है ना तुम? There is a reason behind it. Sir, Why does it happen? क्यों करते हैं हमेशा? ज्यादा टायर्स क्यों लगाते हैं? ताकि क्या फर्क पड़ता है उससे? व्हीकल ज़्यादा जल्दी मूव करे, हो सकता है। बेटा आपका रिसर्च वर्क इज नॉट प्रॉपर, और डिस्कशन फिर प्रॉपर नहीं हुआ है, और रिसर्च वर्क प्रॉपर नहीं है। ये ऑल दीज पैरामीटर्स यू शुड थिंक अबाउट रिसर्च वर्क में ही। व्हेन यू पुट मोर नंबर ऑफ टायर्स, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। इट्स लाइक मोर कॉन्टैक्ट एरिया, तो वेट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मोर कॉन्टैक्ट एरिया। Do you think that you can actually add a function of two-wheel drive in this? इट्स ऑलरेडी a two-wheel drive ना। एक डीपीडीटी से 2 व्हील घूम रहा है। मतलब कि उसको समझाओ, फिर उसको पता नहीं है टू व्हील ड्राइव। like only the rear wheels spin and the front wheels are left loose. Can you make it move like that? पूरा खाली बैक व्हील स्पिन कर रहा है। हाँ, वो तो बस हम मतलब तुम ये कह रहे हो कि बस पीछे के टायर रोटेट करेंगे और आगे के टर्न करेंगे। हाँ, वो कर सकता है, बस जैसे कि हम लोगों ने ये 2 टायर्स का एक ही स्विच लगा दिया, जैसे हम लोग नॉर्मली कनेक्ट करते हैं, और वो आगे और पीछे कर दिया, और आगे के 2 टायर्स हैं, वो जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक स्टिक से अटैच कर दो और एक और स्टिक मतलब ऐसे अटैच कर दो कार्डबोर्ड से ऊपर आते हुए, और उसके ऊपर एक मोटर अटैच कर देंगे, तो वो जब वो मोटर घूमेगी तब वो स्टिक भी घूमेगी ना, तब वो टायर जैसे टर्न होंगे। दैट इज द टू व्हील ड्राइव यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? जो ये बोल रहा था ना, अक्षर जो कह रहा था कि चारों टायर्स के अलग अलग स्विच, दैट इज अ 4-wheel drive, राइट? 4-wheel drive has a specific benefit, is it? हाँ sir, you can acquire more speed. Really? सर इसीलिए तो हम स्मोक से भाग गए थे। oh yes, वरना she's तो right. वही No, फंसा no, रहता no. I think 4-wheel drive is not for the speed. मुझे जहाँ तक लगता है 4-wheel drive is better in those rugged terrains. See, DPDT स्विच में फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, वो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। सर फोर्थ व्हील Point ड्राइव वो नहीं है, point is something सर else. फोर्थ व्हील ड्राइव इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पीड के लिए, क्योंकि सर इट प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था ना जीप में, तो फिर हम एक शॉप में फंस गए थे। Exactly. तो तो मैं को two बोल रहा हूँ wheelers जो से terrain, body the weight terrain कम on which you करते are driving that 4-wheel drive, rough terrains में better होती है। Rough terrains जो ऊबड़ खाबड़ से ऊपर नीचे होते हैं उनमें better होती है। Reason I don't particularly So know. maybe So मेरे ख्याल से वो reason वो behind ज्यादा the स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। so the reason behind the movement of the cars on rough terrain is four-wheel drive is because it gives more power, which can overcome that rough So the terrain. power can be given more to the two-wheel drive also, ना? Yes. If it is just a matter of power, तो power तो two-wheel drive में भी manage की जा सकती है। Yes, but you cannot just take the power in middle, right? See, you're not okay. Listen to me. What I'm trying to say. 4-wheel drive और 2-wheel drive में जो basic difference है ना, वो difference कैसे help कर रहा है वो नहीं बता रहे हो। Power तो किसी भी कार में manage की जा सकती है। If it is just a matter of amount of power, right? मेरे को क्या लगता है सर ये वो 2 3 टायर्स के से हम लोग सिर्फ ऐसा एक को रोटेट फॉरवर्ड एक को रोटेट बैकवर्ड करके मतलब रोटेशन और कर रहे हैं ना, मे बी वो ऐसे 2 3 टायर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन कर दे जिससे वो जहाँ से बस ये जो नॉर्मल फंक्शन मुझे भी है ऐसा ही लगता है। वहाँ उससे नहीं निकल सकते, वो कॉम्बिनेशन से निकलता है। Anything else, Larry? Sir, Wait. Dude,
एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? लहरी तुम्हें कुछ ऐड करना है? Sir, one question I Yeah. already told her. ओके ओके लिसन अप। एक तो जब तुम बोल रहे थे कि फोर्सेस हैं तो आउट ऑफ लाइन फोर्सेस, इनलाइन फोर्सेस, वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हो बेटा। मैंने पहले ही बोला था कि बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग ऑल्दो द लॉजिक इज करेक्ट। ठीक है, ओके फाइन। एंड योर रिसर्च वर्क इज वीक। रिसर्च वर्क करो यार तुम। आई डोंट नो, प्लीज। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड?